और मतलब जो रोइंग में आके मुझे और मतलब मेडल भी मिला है और अच्छा लगा। जैसे मेरा काम उन्होंने थोड़ा उन्होंने मैंने पेस मेंटेन किया, उन्होंने मैच किया, तो उनको हमें पता चला आपस में कि आगे क्या फील होता है, पीछे क्या फील होता है। तो The focus, the chat and the preparation is obviously about the Asian Games and the Commonwealth Games at this point of time, but the bigger picture is what is going right behind me, the countdown and the countdown towards LA 2028. Hello and welcome, I'm Rohit Juglan, you're watching Rev Sports. I'm here at the Inspire Institute of Sports, that is IIS Bellary in Karnataka. Spent more than 50 hours here and saw how the players are preparing as far as the big tournaments are concerned. But not only this particular video, the next 15 minutes won't only be about how the players are performing, but obviously the kind of setup they are living in, they are breathing in, and they are preparing. It's not only about the players, it's also about the infrastructure, it's also about the coaches, the dietitians, the strength and conditioning coaches, the science behind sports, each and everything which they are getting from here, from IIS Bellary, and how this particular place making India stronger as far as the sports is concerned. And when I'm talking about sports, it's the new inclusion of rowing also at this point of time. So we'll start from rowing. This year only, the Inspire Institute of Sports launched a major rowing program for women's in collaboration with Rowing Federation of India. The RWP3 facility at IIS serves as the main training base, providing a dedicated setup for the rowers. You can't say that the men have won anything. It's a question to see what we've done with the women and how they've been developed. They actually got really very little. That being said, rowing as a sport worldwide is not a very highly, it doesn't take years and years to get there, right? I mean, when I was a university student, I remember going for my orientation when I first came on campus. There used to be a sign like this that said, please come try out for the crew team, okay? And those people who've never done one pull of rowing have signed up, and after 4 years are at the Olympic Games. So it is a possibility. It's very physiologically driven. One, we have some of the best physiological facilities here. That was the first thing. Second point is that the men are already getting a very, very good facility with very, very good coaching. So why not look at the women? Two, the third really big point was that we really thought that if we can give them an environment which has training and food and thing, it's an easy sport to be able to get them to a very high class level. Gary Hall, the high performance director at the IIS, told us about the recent collaboration with the Rowing Federation of India, where they are running a dedicated women's rowing program at the RWP3 training facility, where they are hosting 18 top level rowers. Within the IIS, we've been able to, under the investment of Parth Jindal and the presidency of Manisha Malhotra, we've been able to invest in the right areas, and we've been able to invest in good coaching. We've been able to invest in proper science and medicine. We've also been able to invest in infrastructure, which you may have seen some of the infrastructure changes that are ongoing with the HPC, which is a fundamental centralized piece of the jigsaw, which works for every sport. If you don't get your conditioning right, which is one of the things that I observed early doors, that Indian athletes were very good in the first part of most games or most matches, but their physical conditioning didn't match the demands of the actual sport on the elite level. And these changes will allow us to do that. You know, the change in the team, a complete change in the S&C team, a complete change in performance analysts, which is a really big, important part. Wasn't there before, is there now, and operated by world-class people. Medical, you may have met Gatman, you may have met a few others. You know, it is all there, and it's all now starting to work together. And it has been an interesting 15 months, and we've already started to see some really promising results across most of our programs. You will have also seen the introduction of a couple of new sports as well in Taekwondo and rowing.
Historically, the narrative of Indian rowing has been predominantly centered on its male athletes. However, the establishment of the IIS facility in Vijayanagar represents a concentrated effort to provide female rowers with a dedicated framework for elite success. Two standout teams training at this center, the coxless pair of Diljot and Suman, alongside with the double sculls duo of Priya and Poonam. They are set to represent India at the Asian Games. मेरा नाम सुमन है। मेरा नाम दिलजोत कौर है। अभी हमारा एशिया कप में कोरिया में हुआ था जो वुमेन कोक्सलेस पेयर में ब्रॉन्ज मेडल आया। दिलजोत, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने 13 इयर्स के बाद एशियन कप में मेडल लिया, मतलब बहुत गैप के बाद हमारे रोइंग का मेडल आया। प्लीज़ वो एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हम पहले कैंप में नहीं थे, स्टार्टिंग था, हम बिगनर्स थे, तो पता था कि अभी वुमेन्स टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। हमें होप तो होती थी हर बार कि हाँ इस बार आएगा, पर शायद उनको भी वो फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंट रह गए। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी मैनिफेस्ट किया था कि शायद आगे जाके हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हमारी भी टीम बॉयज़ की तरह थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो आने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में हम मेडल लेके आएंगे। तो हमने सोचा हुआ था कि हम लेके आएंगे और उसी हिसाब से हमें आईएएस ने फैसिलिटी दी, हर एक चीज़ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जैसे जिन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं थी उन चीज़ों के बारे में बताया, जैसे न्यूट्रिशन, फिजियो और स्पोर्ट्स साइंस के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज उन्होंने प्रोवाइड करी। तो हमने उनका पूरा, मतलब उस चीज़ का भी हमने पूरा फ़ायदा उठाया कि कैसे रेस से पहले कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो इसीलिए पॉसिबल हो सका कि हम एशिया कप में मेडल लेके आए। थोड़ा सा अपने स्टार्ट के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट किया था आपने और रोइंग क्यों चुना? ओके, रोइंग क्यों चुना? रोइंग ने आपको चुना है, आपने रोइंग? मेरे ख्याल से मुझे लगता है रोइंग ने चुना, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में हॉकी को चुना था। स्कूल लेवल पे मैं 7th क्लास में थी जब से स्पोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद स्कूल में तो पता नहीं था कि रोइंग क्या होती है, फिर कॉलेज में आए, चंडीगढ़ आके पता चला कि रोइंग क्या होती है। तो फिर धीरे धीरे एक टाइम हॉकी खेलने जाना, एक टाइम रोइंग में जाना, तो फिर रोइंग में ही आ गई इंटरेस्ट आ गया। आपको लगता है ये स्पोर्ट जो रोइंग है वो अभी भी बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, और कैसे, मतलब क्या और इसमें होना चाहिए कि लोग इसको और जानें और इस स्पोर्ट को ज्वाइन करें? बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि हर एक, हम बोलते हैं कि हम रोइंग करते हैं तो वो अलग ही स्टाइल, जैसे कैनो के पैडल्स उन्होंने देखे हुए हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ये वाली करते हो या फिर ये वाली करते हो, तो हमें उनको वीडियो दिखाना पड़ता है कि नहीं हम ये वाली करते हैं, रोइंग करते हैं। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि रोइंग, इवन हमारी साइड पंजाब में, हरियाणा में भी अभी पता चला है लोगों को कि रोइंग क्या होती है। काफ़ी इंडिया में तो बहुत कम लोगों को पता है कि रोइंग क्या होती है। तो जैसे अभी स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा लोगों को जागरूक कर रहा है कि हाँ रोइंग भी एक गेम है और इसे भी ज्वाइन करना चाहिए। अब आप उनको थोड़ा सा बताओ, ये फर्स्ट टाइम है कि जो हमारी वुमेन, मतलब फैसिलिटीज़ रोइंग के लिए जैसी मेन की थी वैसी वुमेन के लिए भी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि जो वुमेन्स टीम है वो साथ में ट्रेन कर पा रही है, तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप लोग और अच्छा बॉन्ड कर पा रहे हो? बेनिफिट, मतलब हमें बेनिफिट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि हमें सभी चीज़ें, जैसे बताया इन्होंने कि सभी चीज़ें की फैसिलिटी मिल रही है और हमें सभी चीज़ के बारे में पता चला। हमें रोइंग में ये पता था कि प्रैक्टिस करना है ना, मतलब प्रॉपर रेस्ट, डाइट, प्रॉपर हमारा जैसे न्यूट्रिशन मैम है, फिजियो सर हैं, स्पोर्ट्स साइंस है, हमें उनकी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि रोइंग में ये भी इम्पोर्टेंट होता है, डाइट होता है, प्रॉपर हार्ट रेट मैंने कैसे कंट्रोल करना और प्रॉपर मसल्स को एक्टिव करके बोट में वार्म अप, मतलब प्रॉपर सारी फैसिलिटी बता रहे हैं। तो हमें मतलब उनके और नॉलेज पता चल रहा है कि हाँ ऐसे भी करना चाहिए, इससे और अच्छा बेनिफिट होगा और अच्छी रोइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपने न्यूट्रिशन की बात की, कैसे एक रोवर की न्यूट्रिशन अलग होती है दूसरे स्पोर्ट्स से, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जो और स्पोर्ट्स हमारे आईएएस कैंपस में, उनसे हमारी मतलब रोवर्स की डाइट और न्यूट्रिशन कैसे डिफरेंट है? क्या चीज़ आप लोग को ज़्यादा यूज
लगती है मतलब? हाँ, रोइंग में सबसे ज्यादा मतलब पानी से पहले जैसे हम रेस वगैरह की जा रही है उससे पहले हमें ज्यादा जरूरी है जैसे कार्ब इंक्लूड करना। जितना हम कार्ब लेंगे तो हम रेस में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने पाएंगे। जैसे हमें रेस से पहले 2 घंटे पहले कितना कार्ब लेना, कितना प्रोटीन लेना है, वो हमें मतलब न्यूट्रिशन मैम डेली हमारे से रोज शाम को मतलब सभी से फोन पे बात करते थे। मतलब हम कोरिया थे उधर भी हमें बार बार फोन करते रिमाइंड करते थे कि हाँ अभी तुम्हें मॉर्निंग में इतना कार्ब लेना, इतना प्रोटीन लेना है, रेस से 30 मिनट पहले क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब हर चीज के बारे में बार बार रिमाइंड करते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हाँ हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो हमें कुछ करके दिखाना है, तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी अच्छा हुआ। जब आप लोग कोरिया में थे और आप लोग का इवेंट चल रहा था, कब उस टाइम पे लगा कि हाँ हम मेडल जीत सकते हो या मेडल की कंटेंशन में हो? कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट और पुश किया ये हम कर सकते हैं? हम यहाँ से ही सोच के गए थे कि अगर जाएंगे तो लेके मेडल ही लेके आएंगे। इधर ही वैसे हम IAS में उनकी प्रैक्टिस तो जितना सपोर्ट मिल रहा था, हमारे कोचेस भी हम पूरा मोटिवेट करते थे कि हाँ तुम कर सकते हो मेडल। इधर से मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब की बार मेडल आएगा। कलर नहीं पता क्या आएगा और पर फिर उसके बाद हम साउथ कोरिया में हमने 2 दिन प्रैक्टिस भी की है और उधर प्रैक्टिस से भी पता चल रहा था कि क्या रेस रहेगा। और फिर उसके बाद हमारी हिट रेस हुई थी, वो हमारी अच्छी रही थी। फिर उसके बाद हमें और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेडल आएगा, तो थोड़ा सा वो अच्छा था। आप आपस में जब आप रेस नहीं कर रहे होते हो, कोऑर्डिनेशन कैसे आप कैसे रखते हो कि गाने सुनते हो, फिल्में देखते हो, खाना खाते हो, बाहर जाते हो, जैसे साउथ कोरिया आपने बोला, क्या रहता है आपका ऑफ द रूटीन, क्या रहता है? आप बिताते हो वक्त साथ में कि हम ऑफ द फील्ड भी थोड़ा सा ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रह सकें? हम पूरा दिन साथ में रहते हैं और एक ही रूम में रहते हैं दोनों, और पता होता है एक दूसरे की एक एक मोमेंट के बारे में पता होता है कि हम किस टाइम क्या कर रहे हैं। और जब भी हमें याद आता है कि बोट में आज ये हुआ था, उसी टाइम हम शेयर करते हैं कि आज थोड़ा सा ये हुआ था, या फिर आज हमारा अच्छा आया था, आज कोई कमी जहाँ कोई अच्छाई, उसी टाइम हम शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर तो हम दोनों के बीच में बोट की बातें होती है और बॉन्डिंग तो अच्छी है। जैसे बोट की बातें होती है तो क्या बोल रहे हो, क्या टेक्निकल चीजें कमी बता पाते हो एक दूसरे को अच्छे से कि यार आज तेरा ये हल्का था या मेरा ये स्ट्रॉन्ग था, इसमें आपस में कुछ खटर पटर नहीं होती है? मतलब ये होता है कि बोट में कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, पर बोट से बाहर भी जैसे नॉर्मल कैजुअली होता है, रोइंग में ये कि कॉम्बिनेशन उधर भी अच्छा होना चाहिए, दोनों का बॉन्डिंग होना चाहिए, एक दूसरे को मतलब ऐसा होना चाहिए बॉन्डिंग की हाँ सारी बात शेयर कर सकें, ऑफ फील्ड भी, पानी की बाहर वाली भी। जैसे हम रेस से आते थे तो हम हर रोज मतलब पूरा रेस की वीडियो देखते थे और फिर इसके बाद क्या सोचते थे कि हमारा जो स्पीड कोच होता है उसको भी रिमाइंड करते थे कि कहाँ पे क्या कमी रहा है, कहाँ पे लूज रहा है। तो फिर हम आपस में डिस्कशन करते थे कि यहाँ पे मैं लूज रही हूँ, यहाँ पे आप लूज रहे हो। तो फिर नेक्स्ट टाइम रेस होता था तो हम उस चीज पे एक्स्ट्रा फोकस करते थे, एक्स्ट्रा ध्यान करते थे, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा होता था। स्पीड कोच आपने बोला वो आपका मशीन है या एक एक्चुअल कोच है? एक्चुअल मॉनिटर है जो हम बोट में आगे निकालने लगाते हैं, वो मॉनिटर है। उसमें हमारा पूरा 2 किलोमीटर का हर 100 मीटर का एवरेज स्प्लिट्स मीटर स्ट्रोक रेट पूरा दिखाई देता है हर 100 मीटर का। तो जब आपने रोइंग स्टार्ट करी थी, आप पहले आपने हॉकी किया, फिर रोइंग करी, आपने जब रोइंग करी तो ऐसा कुछ जो रोइंग के बारे में आपको पहले लगता था कि रोइंग ऐसी है, फिर जब आपने रोइंग स्टार्ट करा प्रॉपर, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो पूरा ही अलग है, तो क्या डिफरेंस लगा था उसमें? क्योंकि जैसे रोइंग में हाइट देखते हैं ना, तो हमारी हाइट देख के बोलते थे कि तुम्हें रोइंग करनी चाहिए तो तुम आराम से इंडिया खेल लोगे। हॉकी में क्योंकि ऐसे होता है ना, इंडिया खेल ले एक बार तो ऐसे, पर यहाँ पे आके पता चला कि इंडिया खेलना इतना भी आसान नहीं है। रोइंग में भी पूरी जान लगानी पड़ती है और देखने में हमें शायद लगता है कि आसान ही है, बस बोट में बैठ के तो करना है, देखने में लगता है, पर मेरे ख्याल से सारी गेम ही डिफिकल्ट है, पर रोइंग में पूरा आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जान लग जाती है तो फिर पता चलता है कि रोइंग क्या है। आपने डिफरेंस? मैं भी पहले रेसलिंग करती थी, 2 साल मैंने रेसलिंग किया है। उसके बाद मतलब हमारे गांव के पास ही है हरियाणा का क्लब, तो वैसे ही नॉर्मली मेरे दादाजी है वो देख के आए, ऐसे बोले कि मैं रेसलिंग से फोन किया, एक रोविंग गेम है, रोविंग बोला था इस टाइम पे, हाँ रोविंग गेम वो क्या होता है रोड पे। उसके बाद वैसे आए नॉर्मल चेक करने आए,
फिर देखा मतलब नॉर्मल किया, प्रैक्टिस किया, उसमें तो पावर ही नहीं लगती स्टार्टिंग में, क्योंकि टेक्निक वगैरह नॉर्मल बताते हैं तो ऐसा लगता है पावर ही नहीं लग रही है, तो लाइट गेम है, कुछ नहीं है रोल। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता रहा रोल, फिर पता चला रोइंग गेम एक्चुअली बहुत हार्ड है। उसमें मेंटली फिजिकली सबसे ज्यादा तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकली से ज्यादा जितना हम मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ही और अच्छा कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वीडियो इन्होंने जो डाला था, आपका पूरा टीम बैठ के एक साथ वो ERG मशीन पे ये करते एर्गो, हैं, हाँ। तो जानना था कि ऐसा और कोई एक्टिविटीज आप करते हो आपका कोऑर्डिनेशन सेम होने के लिए? एक्टिविटी तो जैसे हम मतलब सर्किट कोर वगैरह यही करते हैं, पर आर्गोमीटर मेन है हमारा। अच्छा, मतलब उसने कोऑर्डिनेशन के लिए मेन आर्गोमीटर ही है। कोऑर्डिनेशन पावर के लिए, वो पावर के लिए, टेक्निक और पावर के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए मेन पानी में बोट में ही है, हम दोनों एक साथ। मतलब एर्गो में भी होता है। तो जब आप पीछे बैठे थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, उसमें भी काफी अच्छा लगा हमें। पर ऐसे हमने कोइंसिडेंस चेंज हुआ, पर हमें फील हुआ कि जैसे मेरा काम उन्होंने थोड़ा उन्होंने किया, मैंने पेस मेंटेन किया, उन्होंने मैच किया, तो उनको हमें पता चला आपस में कि आगे क्या फील होता है, पीछे क्या फील होता है, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता चला, हाँ आगे ये चीज मुश्किल है, पीछे ये चीज मुश्किल है, तो हमें उस चीज का थोड़ा बेनिफिट हुआ, कोइंसिडेंस हुआ पर बेनिफिट हुआ कि हाँ आगे वाला ये कर रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा। मुझे पता चला कि हाँ आगे ये चीज करनी पड़ती है, मुश्किल है, पीछे ये चीज करनी पड़ती है, मुश्किल है, तो उस चीज के लिए हमें उस दिन अच्छा लगा थोड़ा सा। थैंक यू। The selection process in rowing operates on a distinct logic. The qualification belongs to the boat, not to the athlete. National coach Ratish DB clarifies that while India has officially secured its place in the women's coxless pair and double sculls categories, the specific seats in those boats remains open. तो कौन से जो बोट्स में जो क्वालिफाई होते हैं उनका नाम बताएंगे? जब वो क्वालिफाई होते तो बोट में कौन थे? हाँ ये सर, जो कॉक्सलेस पेयर में जो क्वालिफाई हुआ था, जो वो साइड में सुमन एंड स्टॉक दिलजोल बैठा था। The bronze medal finish for Priya and Poonam in Chungju was a masterclass in rhythmic precision. Clocking in at 749.729 in the women's double sculls, the duo officially punched their ticket to the 2026 Asian Games. For Priya, this achievement is particularly significant. मेरा नाम थांगजम प्रिया देवी और मैं मणिपुर से हूँ। मेरा नाम इनामवर्ती देवी, मैं मणिपुर से हूँ। आपने रोइंग कैसे स्टार्ट किया? मैं 2017 नवंबर से रोइंग स्टार्ट किया था। पहले मेरा इवेंट था एथलेटिक में, और एथलेटिक में मेडल मतलब ज़्यादा टफ है, तो रोइंग में मेरा मम्मी का बहन उसने मैं रोइंग में लेकर आया, और पहले मैं रोइंग में तो कैसे रोइंग करती है वो भी पता नहीं है, और मैं स्विमिंग भी नहीं आती थी इसी टाइम में तो। और मैंने सब जूनियर 2018 सब जूनियर चेन्नई में हुआ था, उसमें मैंने सब जूनियर में गोल्ड लिया था डबल में। और मतलब जो रोइंग में आके मुझे और मतलब मेडल भी मिला है और अच्छा लगा, और धीरे धीरे मैं कैसे रोइंग में मतलब जो बहुत रोइंग में भी इजी होता है, मैंने मतलब दूसरों ने बोला कि रोइंग में तो थोड़ा इजी होता है, पर अभी रोइंग में भी इजी नहीं है कुछ भी मतलब बहुत दिमाग का काम करना पड़ता है, और सब कुछ बॉडी और लेग सब कुछ यूज़ करना पड़ता है रोइंग में। अभी आपको स्विमिंग आता है? अभी स्विमिंग आ गई एक ट्रेनिंग सेशन में कितना आप लोग डिस्टेंस कवर करते हो, कितना आपका ट्रेनिंग सेशन चलता है? 90 मिनट्स, मतलब 1 घंटा से आगे, मतलब जो वार्म अप में 15 मिनट हो गया, और पानी में मतलब हमारा वाव ज़्यादा मतलब इंड्योरेंस में ज़्यादा टाइम लगता है, और थोड़ा शॉर्ट्स भी है, ऐसे ट्रेनिंग अलग अलग दिन का अलग अलग होती है। और इन्होंने कैसे स्टार्ट किया? 2020 का अक्टूबर से स्टार्ट किया था रोइंग। ये भी कोई दूसरा, ये भी कोई और स्पोर्ट्स पहले करती थी कि डायरेक्टली रोइंग से स्टार्ट किया था? डायरेक्टली रोइंग से स्टार्ट किया था। कौन इनको लेके गया था रोइंग, कैसे इनको रोइंग के बारे में पता चला? ये तो आप बोल दो। Kanana hayak ko ikang ginala. Kamay toro चंगा क्या रोइंग दा। वो हमारा खेलो इंडिया का वो होती है ना मैम, उसमें वो मतलब पहले कैनोइंग कैकिंग में किया था, तो फिर उसका हाइट भी थोड़ा लंबा है करके रोइंग में फिर लेकर आया था मैम लोग।
रोइंग में लंबी हाइट को कैसे हेल्प मिलता है? मतलब जो हमारा बोट में मैम हाइट मतलब जो ज़्यादा हाइट रहती है उसमें थोड़ा लॉन्ग स्ट्रोक और हमारा बोट में उसको मिलता है हाइट, लंबा हाइट का स्ट्रोक लॉन्ग जाती है और उसमें ज़्यादा मतलब अच्छा लगते है लंबा हाइट में। यहाँ दिन में और कितना, अभी मॉर्निंग में बोट का सेशन होता है, हाँ। उसके बाद आई थिंक अर्क मशीन पे भी होता है और फिर जिम भी होता है ना? हाँ, एक दिन में 3 सेक्शन भी होता है कभी कभी भी मतलब और फिर मॉर्निंग का हो गया, फिर सेकेंड सेक्शन में मेचिन आर्गोमीटर जो इंडोर का उसमें हुआ, फिर इवनिंग में जिम हुआ और इवनिंग में 20 में मतलब सेकेंड सेक्शन में ट्रेनिंग मतलब जो आर्गोमीटर नहीं है तो फिर इवनिंग में आर्गोमीटर ऐसे 20-20 में 3 बार भी होता है, 2 बार भी होता है। तो आप रफली एक दिन में कितना वजन आपका, लाइक अभी ट्रेनिंग सेशन से जब आप रोइंग सेशन से जब वापस आते हैं तो रफली कितना वेट आप यूज करते हैं जस्ट एक सेशन में? मतलब जो हम वेट का तो ऐसे मॉर्निंग में हम मतलब मेरा बॉडी वेट 68 था तो ऐसे 68 जाएगा तो एक मतलब जो 67.5 ऐसे भी आता है मतलब और एक कम मतलब हम बोर्ड का 20 में ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद पानी पीता है और पानी कम पीने से हमारा वेट लूज होता है, कभी किसी का वेट लूज होता है कभी किसी का अप होता है, ऐसे हमारा ट्रेनिंग सेशन का 20 एवरेज कितना तक आपने देखा है वेट लॉस होता है जस्ट एक ट्रेनिंग सेशन में 1 kg ऐसे हाँ। Behind the explosive power of every stroke and the meticulous recovery of the athlete stands sports nutritionist Natanya Bhatt. Her influence on the team's performance is established long before the rowers touch the water. Amount of carbohydrate is slightly lower on training days when it comes to competition days. So on competition, the strategy is completely different. As I mentioned, I mean, for them, the fueling starts or the nutrition starts one day prior. It's not just the day of competition. So in the night or the lunch or the breakfast or the dinner prior to competition day. When it comes to recovery, there are 3 main pillars according to me. First is nutrition, second is any sort of recovery, that could be ice baths, sauna, etc. And the third is sleep. So they need to have all of this in order to actually recover. It's not just nutrition, it's a combination of all three. So we have to ensure that our rowers get time to eat, and then they get time to sleep, and then they get time to do any sort of other recovery throughout the entire week, that is sauna, ice bath, and then that's how they go on with their week. Is there a time gap that you make between like the free time snacks and the lunch and the dinner, or does it vary when you're in competition or when you're off competition? Yeah, it does. So in training, because the energy demand is not that much, we start feeding them, let's say, like 1.5 hours prior. So alongside SNC and the coaching staff. So if there is an athlete who probably needs to be on hypertrophy, they would probably go for another day of strength and conditioning compared to the others. So in that way also the carbohydrate intake would increase, but also the protein requirement would increase if, let's say, we would try to focus on somebody's bone mineral content or the density itself. We will again have to be loading them up on a little bit more weights to increase the bone mineral density.